Creating a study timetable for your CLAT preparation will depend upon how much time is available for you, what's your current level of preparation, and what are your study preferences. Here's a suggested timetable that you can follow for all those people who are either preparing with their college or with their school studies. Hey everyone, welcome to the channel. My name is Ananta and I make videos related to law school and self-help. In case these interest you, make sure you subscribe. Now because we want to prepare with our school or with our college for CLAT, that means we need to carefully plan कि हमारा academics हम school का या college का कैसे manage करेंगे and how will we manage our preparation as well, right? So for that we need to make time क्योंकि अलग से तो हमें time मिलेगा नहीं preparation का. अब इसके लिए time कैसे निकाला जाए? So first of all you need to know कि आप morning person हो या night person. Like if you prefer कि आप रात में पढ़ो then your day will be scheduled accordingly. But if अगर आप दिन में पढ़ते हो तो you will schedule your day accordingly, right? Let's suppose you are a night person, right? Because I'm presuming most of the people nowadays study at night. So, morning hours, you wake up, get freshened up, go for school. School hours, you come back, have like half an hour, 1 घंटे का rest. And then you have time, suppose 4 o'clock, so you sit for study. So you have these 2 hours where you can prepare for CLAT. You can devote to CLAT preparation. 2 hours. Then you can again take a break. And then maybe 7 बजे तक, 8 बजे, जब भी आपका खाना होता है accordingly, आप अगेन 1 से 2 घंटे वापस से आप निकाल सकते हो और अपनी क्लैट प्रिपरेशन को दे सकते हो. ठीक है, तो मान लो आपने 9 बजे तक का टाइम क्लैट प्रिपरेशन को दिया, 1 घंटा आगे पीछे कर लेना अपने हिसाब से, जब भी आपका डिनर होता है उसके हिसाब से. 1-2 घंटे आप वापस से क्लैट प्रिपरेशन को देने के बाद यू हैव टाइम. अगर आप नाइट स्टडी करते हो तो अब आप कॉलेज की स्टडीज़ को टाइम दे सकते हो, आप अपने एकेडमिक्स स्कूल एकेडमिक्स को टाइम दे सकते हो. इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप स्कूल में हो तो आप उन चीज़ों को मतलब कम ना आंको कि नहीं इतना ज़रूरी नहीं है. नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट. साथ साथ पढ़ते जाओगे तो इट विल नॉट बी अ बर्डन इन द एंड. बट अगर आप अभी बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो लिटिल प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. अब क्योंकि हम अगर अभी देखें कि हमने कितने घंटे दिए, अभी जो हमने डिसाइड किया उसमें हमने स्कूल से आने के बाद 2 घंटे दिए या कॉलेज से आने के बाद 2 घंटे दिए, उसके बाद फिर से थोड़ा ब्रेक के बाद फिर से 2 घंटे दिए. सो वी हैव ऑलरेडी गिवन 4 आवर्स. आई डोंट थिंक सो मोर देन 4 आवर्स इफ़ यू आर गिविंग ऑन द डेली बेसिस, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी प्लान्ड इज, चलो 4 घंटे भी अगर ज़्यादा गए तो आप 3 घंटे एटलीस्ट दे सकते हो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट. ठीक है, द थिंग इज इफ़ यू वॉन्ट टू crack CLAT, you need to now not just divide your time and study, sit and study anything, but you need to make sure that आप decide कर रहे हो कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है. अब यही 3 घंटे आपको डेली मिलेंगे. इन्हीं 3 घंटों में आपको अपना कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, आपको टेस्ट्स भी देने हैं, आपको मॉक्स भी देने हैं. तो you will have to now segregate your days according to when will you give tests, when will you prepare your foundation of a subject, right? अच्छा, before we move on, the thing that you need to remember is आप CLAT की स्टडीज़ को अगर एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो तो that will not happen in the weekdays, it will happen on the weekends. तो if possible वीकेंड्स पे आप बाहर जाना अगर अवॉइड कर सको या थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सको और आप एक्स्ट्रा टाइम वीकेंड्स पे दे सको, that will be more beneficial for you because then you will be able to test more, practice more. and मैंने 2 बार CLAT दिया है, ठीक है, though I did not get into an NLU, but I improved my performance a lot from my last attempt and the previous attempt with that. So what I've realized is practice is something that can really fetch you a lot of marks, and I got ILNU because I practiced in my second attempt a lot of marks, that too in just like 20 से 30 दिन होंगे मुश्किल से मेरे पास, तभी मैंने करा था. तो the major thing you need to remember is CLAT is not about knowledge now. CLAT is more about your practice, your ability to answer questions, comprehend चीज़ें. ठीक है, तो make sure that अगर आप 3 घंटे दे रहे हो तो उसमें से 1 घंटा आप टेस्टिंग के लिए रखो. Because when you give test, आप उसको वापस अब देखोगे, आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और ये समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी, इसको किस तरीके से सॉल्व करना था. तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना. ठीक है, मतलब ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, थोड़ा रेपिटेटिव हो गया, लेकिन प्लीज़ सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना. इट विल नॉट बी बेनिफिशियल. यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. And I would strongly emphasize all of you to give more and more mocks, more and more tests, more and more of quizzes. ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगी आपके अंदर. डू नॉट हेजिटेट टू स्पेंड ऑन थिंग्स दैट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स. By that I mean if you want to buy a mock series or test series,
please go ahead and do that. That will only benefit you. Make sure that you are on it, you do attempt mocks, you do make sure that you're giving quizzes and tests. In case you want some options and test series, one option that I bring forward to you is Smart Kida's test series. So all of the students who are preparing for CLAT 2024, it's a comprehensive plan for all of you. On the screen are flashing the different programs that are available, different test series that are available with Smart Kida with different prices, alpha, beta, gamma. It has different facilities, different options that they provide to you, so make sure you check it out. For all those people who also want mentorship, Smart Kida has their own YouTube channel. They have people in their team who themselves have cracked CLAT, so they'll be a very good guide for all of you. You can definitely check it out. So Smart Kida brings to you everything that you require to crack CLAT, be it mentorship, mock tests or coaching. Make sure you check it out, and also in case you decide to buy it, you can use this coupon code to get extra discounts. I will see you in the next part. इसके साथ हम कुछ additional tips भी discuss कर लेते हैं जो important है हमें. पहली चीज़ जैसे बोली, prioritize your school academics more than that, right? बिकॉज आप अभी जो चीज़ कर रहे हो उस पर भी आपका फोकस होना ज़रूरी है, तभी आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर योर स्कूल एग्जाम्स और फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स. अनदर थिंग इज यू हैव टू ब्रेक डाउन योर सिलेबस इनटू स्मॉलर पीसेस, क्योंकि अब आप 3 ही घंटे दोगे डेली, ठीक है. उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आप कितने घंटे दोगे, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स हैं, राइट. तो यू नीड टू मेक श्योर आप छोटे पार्ट्स में उस पूरे सिलेबस को डिवाइड करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर करो टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको डिवाइड करो एंड देन अंडरस्टैंड एंड देन एनालाइज कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. योर टाइम टेबल विल बी अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, कहाँ आप ज़्यादा गलती करते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी फॉर योर फॉर्मुलेशन ऑफ द रूटीन, राइट. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं दे पा रहे हो पूरे हफ्ते में भी मॉक, वैसे आई वुड रियली इंसिस्ट कि आप अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हो और कम से कम 6 से 8 महीने हैं भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की, तो भी यू शुड गिव मॉक्स एटलीस्ट 2 times a week, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो अगर आप 2 बार मॉक दे रहे हो वीक में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो मेक श्योर आप रिजर्व डे रखो जिस दिन आप मॉक दो ही दो. फुल लेंथ मॉक की बात कर रही हूँ मैं, टेस्ट क्विजेस की बात नहीं कर रही हूँ, सेक्शनल टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ. फुल लेंथ मॉक दो, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कॉलेज टू योर प्लेस, दैट मीन्स यू आर गेटिंग टाइम. उस ट्रैवल टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स पे अपडेट रह सकते हो, कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स देख सकते हो, और उसी के साथ साथ आप थोड़ा अपना न्यूज़पेपर साथ में मैनेज कर सकते हो. आई वॉज वेरी बैड एट इट, तो मैं तो गलत बंदी होंगी न्यूज़पेपर के बारे में बोलने में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है. इनकेस आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कॉलेज की स्टडीज़ पे थोड़ा इस तरीके से ध्यान देना है कि आप क्लास में अटेंशन पे करो, वीकली उस चीज़ को जो आपको पढ़ाई गई है वो देख लो. दैट इज़ बिकॉज आपको लास्ट में जाके ना, अगर इनकेस आप सेम कॉलेज में कंटिन्यू करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज योर ग्रेड्स विल बी गुड, योर CGPA विल बी मेंटेन्ड. आप एक प्रॉपर अपना प्लान बनाओ, किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को डिवाइड करना है, कौन सी चीज़ें आपको पहले करनी है, कौन सी चीज़ें आपको बाद में करनी है. हर 2 महीने में उस चीज़ को रिवाइज करो रेगुलरली. क्या अब मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज आना चाहिए, क्या अब ये चीज़ें जो मेरी गड़बड़ चल रही थी वो ठीक हो गई हैं, तो अब मुझे क्या टाइम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा देना चाहिए. एक सोर्स लिस्ट मैंने जब जहाँ से प्रिपेयर किया वो मैंने आपको शेयर करी है. मैं उस वीडियो को ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेक श्योर यू लीव दैट इन द कमेंट, और यू कैन DM मी ऑन द Instagram. अगर कुछ मिस हो जाते हैं तो वो गलती से होते हैं, इट्स नॉट इंटेंशनल. With that, I would like to thank all of you for all the support that you've been giving me, and I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.